सेक्शन 13 डिवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी स्टेजेस के लिए. एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or wife be dissolved by the decree of divorce on the ground that the other party has after the solemnization of the marriage had voluntarily sexual intercourse with any person other than his or her spouse, means guilty of adultery. Guilty of adultery. Second, has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty, has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition, means desertion for not less than 2 years, has ceases to be Hindu by conversion to another religion, conversion in another religion, it is a ground of divorce, has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from a mental disorder of such a kind or to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. Explanation. In this clause the expression mental disorder means the mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind, and includes the schizophrenia. The expression psychopathic disorder means persistent disorder or the disability of mind, whether or not including subnormality of the intelligence, which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it required or is susceptible to the medical treatment. Next one, has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy, it is omitted by the 2019 amendment. Has been suffering from vulnerable, एक बार स्पेलिंग देखना इसमें, यही है, venereal disease in a communicable form, has renounced the world by entering any religious order and has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard if it had that party been alive, means the civil death. All these are the grounds of the divorce available to the either party to the marriage, either for husband or for wife. Adultery, cruelty, desertion for not less than 2 years, conversion in another religion, and unsoundness of mind, then suffering from the venereal disease in communicable form, means HIV, etc., and renounce the world, and last one civil death. All these are the grounds of the divorce under subsection first of section 13, and all these are based upon the fault theory. There are 3 theories of the divorce: fault theory, breakdown theory, and the consent theory. The grounds which are mentioned under the 13 subsection first and 13 subsection second based upon the fault theory. And the explanation in this subsection, the expression desertion which is given in the second, yeah, 1b. Desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of the such party, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variation and cognate expression shall be construed accordingly. What is the meaning of desertion explained by this explanation? Desertion means the withdrawal of society to the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause, without the consent and against the wish of the petitioner, not less than 2 years,
and including the willful neglect. Desertion includes the willful neglects. Subsection 1A, either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act. This subsection 1A, in my opinion, added by the 1964 amendment. Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by decree of divorce on the ground that there has been no resumption of cohabitation as between the party to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of the decree for judicial separation or in a proceeding to which they were parties, or that there has been no restitution of the conjugal rights as between the parties to the there is no restitution of the conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of decree for restitution of the conjugal right in a proceeding to which they were parties. These are the two grounds available to the parties in whose favor the petition of restitution of conjugal rights and decree for the judicial separation has been passed. If the another party to the marriage is not ready for the resumption of cohabitation and the restitution of the conjugal rights, then on the basis of these grounds, on the basis of these decree, that period is not less than 1 year or upward. The concerned party may further make an application before the court, may present a petition before the court for dissolution of the marriage or divorce under subsection 1A of section 30. Anil Kumar Jain versus Maya Jain, 2009 Supreme Court. Court held that irretrievable breakdown of marriage is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act 1955. Yet Supreme Court, in exercise of the extraordinary powers under Article 142 of the Constitution, can grant this relief, the relief of irretrievable breakdown of the marriage. Subsection 2, that is only available for wife. A wife may also present a petition for dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground in case of any marriage solemnized before the commencement of this act. In case of any marriage solemnized before the commencement of this act, that the husband had married again before the such commencement, or that any other wife of the husband married before the such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition. Means if husband is guilty of the polygamy, husband is the guilty of polygamy before the commencement of this act, it is a ground of divorce for the wife under this first, because before the commencement of this Hindu Marriage Act, the polygamy is not punishable in India, and polygamy is not a ground for divorce. First time it introduced by the 1955 Act. Second, that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of the rape, sodomy or bestiality. It is a ground for wife to dissolve the marriage by way of the decree of divorce. In a suit under section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, means the suit for maintenance by the wife against the husband, or in a proceeding under section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973, a decree or the order, as the case may be, has been passed against the husband, awarding the maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties had not been resumed for 1 year or upwards. Decree for maintenance or order for maintenance either under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act or 125 CRPC has been passed in favor of wife, and after passing the such decree or order, there is no cohabitation between husband and wife for 1 year or upward. It may be a ground for the wife for divorce under this third point of the subsection 2 of section 13. That the marriage, whether consummated or not,
was solemnized before she attained the age of 15 years, and she has repudiated the marriage after attaining that age, but before the attaining the age of the 18 years. Marriage of the girl child had been solemnized before the age of the 15 years, and she has right to repudiate the such marriage between the 15 to 18 years, after the obtaining the age of 15 and before the attaining the age of 18 years. And if the right to repudiation has been exercised by the concerned wife, then she can file a petition before the court for dissolution of marriage by way of the divorce, decree for divorce. Explanation: this clause applies whether the marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Law Amendment Act 1976. This clause means the fourth clause. Fourth clause is applicable whether the solemnization of marriage is before the commencement of the 1976 this act or after the commencement of this act. Russell versus Russell 1897, the judgment of the House of Lords, in which defined the term cruelty by the House of Lords. House of Lords defined the concept of cruelty. क्या डेफिनेशन दी वो मिसिंग है, इसमें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोर्स? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस जजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिवोर्स? लिटरल मीनिंग ऑफ द डिवोर्स. डिवोर्स इज द लीगल सीजेशन ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड, नॉट बाउंड. व्हाट? बॉन्ड, बॉन्डिंग बॉन्ड. डिवोर्स इज द लीगल सीजेशन ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड. शैलेंद्र कुमार वर्सेस चंद्र प्रभा 1959 MP High Court. Wife, in this case the wife is living in adultery and hence the husband filed the petition for divorce on the basis of adultery. The court passed the decree in favor of husband. Means on adultery, on the basis of adultery, the divorce, this is the important judgment. Dastani versus Dastani 1975 Supreme Court judgment, the divorce on the basis of cruelty. As a ground of a divorce, the cruelty, it is a very leading judgment. After the solemnization of marriage, the other party causes the cruelty, which includes the both physical or mental, it may be ground of divorce. Then what are the types of desertion? So there are three types of the desertion: actual desertion and constructive desertion, and third one, willful neglect. What? Willful neglect. These are the three category of the desertion. What is the meaning of actual desertion? Following are essential ingredients of the actual desertion. There must be a factum of separation. Animus deserendi means the intention of desertion. There must be intention of desertion. Desertion should be without any reasonable cause. Desertion should be without the consent of the other party. And statutory period of 2 years must have been completed before a petition has been present. All these are the essential ingredient of the actual desertion. Bipin Chandra versus Prabhavati 1957 Supreme Court's leading judgment on actual desertion. Which judgment is leading on the actual desertion? Bipin Chandra versus Prabhavati 1957 Supreme Court. इसमें फैक्ट्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, बट पुराना मैंने पढ़ रखा है इसको, बिपिन चंद्र प्रभावती को, जिसमें ये जो प्रभावती है ये मायके है वो चली जाती है, काफ़ी टाइम तक रहती है. जब वो आने ही वाली होती है उस समय उसका पिता एक लेटर है वो लिखता है कि वो आने वाली है प्रभावती. तो ये जो हस्बैंड है बिपिन चंद्र, ये जो है वो मैसेज करते हैं कि उसको मत भेजो, प्रभावती को जो है वो मत भेजो. तो उसके बाद भी वो काफ़ी टाइम तक रहती है. उसमें एक्चुअल डेजर्शन कंसिडर किया गया कि वो जो उसने लेटर भेज के मना किया कि इसको मत भेजो जो है वो ससुराल, तो ये उसका इंटेंशन ऑफ डेजर्शन जो है वो अभित्याग का आशय उससे दर्शित होता है. तो अल्टीमेटली डेजर्शन के बेसिस पे जो है इसमें डिवोर्स की डिक्री है वो पारित की गई थी. तो फैक्ट्स याद हो या नहीं, जजमेंट का नाम आपसे पूछा जा सकता है. विच जजमेंट इज लीडिंग ऑन एक्चुअल डेजर्शन? बिपिन चंद्र वर्सेज प्रभावती 1957 सुप्रीम कोर्ट. Lakshman versus Meena 1964 Supreme Court is another leading judgment on the actual desertion. And what is the meaning of constructive desertion? Constructive desertion
In this desertion, a spouse creates a situation or conduct himself or herself in a manner that the other spouse is compelled to leave the matrimonial house. The party who compelled to leave the matrimonial house is the deserter and not the spouse who left the matrimonial home in that compulsion. Means the conduct of the one party to the marriage is such that the another party of marriage compelled to leave the matrimonial house. In that case, the party who by his conduct or the situation compelled to another party leave the matrimonial house, that is the guilty of the constructive desertion. Who would be the guilty of the constructive desertion, and who the party who compelled to left the matrimonial house, that party is a aggrieved party from the that desertion. Jyotish Chandra versus Meera 1970, Calcutta High Court's leading judgment in respect of the constructive desertion. And what is the willful neglect? Desertion includes the willful neglect of the petitioner by the other party of the marriage. If the party has ceases to be, ये अलग बात आ गई. ये willful neglect ऐसा है, एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे से अजनबी बन के रहना, एक ही घर में रहकर या एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे से अजनबी है वो बना रहना. पति के खाने का टाइम हो रहा है तब पत्नी जो है आराम से नींद ले रही है, या पत्नी के कुछ बाजार से चीज़ें लानी है शॉपिंग वगैरह, तब पतिदेव सुन ही नहीं रहे हैं, या ऐसी मतलब उनके बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है. रह तो एक ही मकान में रह रहे हैं बट ऐसे रह रहे हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है. तो वो जो है वो स्थिति क्या है, वो विलफुल नेग्लेक्ट की है वो स्थिति आती है. वो जानबूझकर अवहेलना करना या उपेक्षा करने में कवर होती है. और ये भी एक डेजर्शन का रूप है. ये भी क्या है, ये भी अभित्याग का जो है वो रूप है. तो सर इसमें वो वाला केस कवर नहीं होगा जो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ उसके रंग की वजह से इग्नोर करता था. वो तो चली गई ना छोड़ के, एक्चुअल डेजर्शन हो गया. कोर्ट ने तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया ना कि वो डिजर्व. भाई उसने कहा कि भाई ये डेजर्शन का ग्राउंड नहीं हो सकता छोड़ने का. हाँ, ये छोड़ने का बट यदि ऐसे आधार पर लंबे समय तक चले ऐसा विलफुल नेग्लेक्ट, एक आध दिन हो तो सहन हो जाता है, साल 2 साल से कोई बातचीत ही है वो नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अलग रहना ही ज़्यादा अच्छा है एक ही जगह पर रहने के बजाय. फिर भी एक बार कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिक्री दे दी, क्योंकि ये एक पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड प्रोविजन है कि परिवार बना रहना चाहिए, फैमिली बनी रहनी चाहिए. ये दैट इज़ द पब्लिक पॉलिसी. सोसाइटी बनी रहनी चाहिए, परिवार रहेंगे तभी तो सोसाइटी रहेगी. उस बेसिस पे दिया था. फिर भी वो नहीं सुधरते हैं. रेस्टिट्यूशन की डिक्री भी आ गई, साल भर गुजर गया और वो एक जगह पर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर अगला स्टेप हो जाएगा डिवोर्स का, जो आपने 13 के सबसेक्शन 1A में पढ़ा है. क्योंकि किसी को आप इच्छा के विरुद्ध तो रख नहीं सकते. हाँ, क्या हुआ? पिटिशनर पे होगा ऑब्वियसली, जो जा रहा है कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन पे, वो साबित करें कि उस अदर पार्टी ने किस तरीके से सिचुएशन है वो इस तरीके की उद्भूत की जिससे आपको विवश होना पड़ा उस घर को छोड़ने के लिए, वैवाहिक है वो घर को छोड़ने के लिए. सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इट इज लीडिंग जजमेंट ऑन कन्वर्जन इनटू द अनदर रिलीजन. केवल केस का नाम ही याद रखना है और देन ये वाले ग्राउंड सबने देख लिया. ये जो है सफरिंग फ्रॉम, ये वनरेबल की जगह जो स्पेलिंग थी बैरक में उसको पढ़ लेना आप. यस, इस पर मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल झैड 1999 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. हैज रिनाउंस, ये अलग बात है. ये मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल झैड में HIV का एक जो मैरिज की पार्टी है वो पॉजिटिव था और डॉक्टर को जो ही पता चला तो उसने मैरिज के दूसरी जो है वो पार्टी थी उसको इन्फॉर्म कर दिया. तो इसमें प्राइवेसी का भी कुछ इशू आया था. तो अल्टीमेटली कहा कि साहब प्राइवेसी ऐसी भी नहीं है कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद है वो आप वो कर लें. तो ऐसी कुछ अपवादित परिस्थितियों में कुछ इन्फॉर्म किया भी है वो जा सकता है. रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग ऑन एनी रिलीजियस ऑर्डर, जो यति सती आदि है वो हो जाते हैं, संसार को पूर्ण और अंतिम रूप से त्याग है वो दे देते हैं, वो सांसारिक मोह माया से बाहर है वो आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और टोटली रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो है उस वर्ल्ड में आ जाते हैं. तो ऐसे लोग वैसे आधार पर ही
जो अब सांसारिक मोह माया से ही जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तो पत्नी तो उसके लिए कुछ बची भी नहीं है या पति उसके लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये विवाह लगभग टूट ही चुका है, तो उस केस में भी डिवोर्स जो है वो हो सकती है। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज या ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज, ये 1964 में इंसर्ट हुई, हमने पढ़ लिया, और 1A में क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, कोई दोबारा बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 2 भी हमने 1 by 1 सारे ग्राउंड्स जो है वो डिस्कस कर लिए। यस, धारा 13 जो है विवाह विच्छेद, टाइटल से कोई प्रश्न आ सकता है। विवाह विच्छेद के आधार क्या है, पति और पत्नी दोनों के लिए कौन से आधार है, केवल पत्नी के लिए कौन से विशेष आधार है, इनमें से कोई प्रश्न आ सकता है। कोई भी विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या पश्चात, पति या पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा है वो विघटित है वो किया जा सकता है। किन आधारों पर? दूसरे पक्षकार ने विवाह के अर्जीदार से भिन्न जो है, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, मीन्स जारता किया है, उसने जार कर्म किया है, तो इस आधार पर जो है विवाह विघटित हो सकता है, विवाह विच्छेद का आधार है वो बन सकता है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्या किया है, क्रूरता का व्यवहार है वो किया है, यह भी विवाह विच्छेद का जो है वो आधार है। दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अविरत पूर्व कम से कम 2 वर्षों की निरंतर काल अवधि पर अर्जीदार को क्या किया है, अभित्यक्त कर रखा है, डिजर्ट कर रखा है, उसको अभित्याग है वो किया है। अर्जी पेश होने की तारीख से 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए डेजर्शन के, 2 साल से पहले ये पिटीशन मेंटेनेबल है वो नहीं होगी। दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में क्या हो गया है, हिंदू धर्म से भिन्न किसी भी धर्म में जो है, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी एटसेट्रा, उनमें जो है वो संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, तो ये विवाह विच्छेद का है वो आधार है वो बनेगा। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है, छोटा मोटा पागलपन नहीं है, जो ठीक ही नहीं हो सकता ऐसा पागलपन है, असाध्य विकृत चित्ता से ग्रस्त है वो, और निरंतर और आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्याशी के साथ रहे। हालांकि व्यवहारिकता तो यह है कि ऐसी स्थिति में दूसरे साथी को जो है सेवा करनी चाहिए, ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए आदि, बट लॉ कुछ अलग तरीके से इसको ट्रीट कर रही है कि ऐसी स्थिति में आप साथ छोड़ दें, विवाह विच्छेद है वो प्राप्त कर दे। तो एग्जाम के लिए तो यही पढ़ना है जो लिखा हुआ बैरक में, ये यदि दूसरा पक्षकार जो विवाह का है वो असाध्य रूप से विकृत चित्ता से ग्रस्त है या निरंतर या अंतरायिक, मीन्स कुछ कुछ टाइम में ठीक भी हो जाता है और फिर वापस बहुत ज़्यादा है वो हाई है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर से सफर है, और अर्जीदार से युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्याशी के साथ रहे, मीन्स उसके जान को भी खतरा है कि इस पागलपन में कभी दूसरे साथी की जान भी है वो ले सकता है, ऐसी स्थिति में है तो ये विवाह विच्छेद का आधार है वो बन सकता है। मानसिक विकार जो शब्दावली यूज ली गई है इस क्लॉज के अंदर, 3rd के अंदर, इसका मतलब मानसिक बीमारी से है या मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास से है या मनोविकृति से या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निस्सकता इससे अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत जो है विखंडित मनस्कता जो है ये भी है वो शामिल है। मनोविकृति जो शब्द यूज लिया गया इस क्लॉज के अंदर, उसमें मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निस्सकता, चाहे इसमें वृद्धि की असामान्यता हो या नहीं हो, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं हो, और ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं हो। दूसरा पक्षकार उग्र एवं असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा, यह आधार जो है 2019 के संशोधन से क्या हो गया, संशोधन से लोपित हो गया। कुष्ठ रोग से, भले ही उग्र एवं असाध्य कुष्ठ रोग से है वो पीड़ित है, वो विवाह का एक पक्षकार, ये विवाह विच्छेद का आधार नहीं होगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो सेवा करिए, उनको ट्रीटमेंट दिलाइए, ठीक हो सकते हैं, बने रहिए उनके जीवन में। इस मंशा से जो है इसको लोपित किया कि इस आधार पर विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। दूसरा पक्षकार संचारी रूप से
रतिश रोग से पीड़ित है वो रहा है, HIV आदि से है वो पीड़ित है। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है। प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है मतलब क्या है? संसार को पूर्ण और अंतिम रूप से त्याग चुका है। क्या है? इस वर्ल्ड को जो है, संसार को पूर्ण और अंतिम रूप से हाँ सन्यासी और क्या, यति जति सन्यासी आदि, हाँ, न धन संपदा परिवार इन सब को छोड़ा केवल ईश्वर है और वो है बस। कोई रूठे तो उसको रूठन दे, उसको तो केवल ईश्वर से काम है। यस, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है, ये भी जो है संसार का पूर्ण और अंतिम रूप से त्याग कर दिया जाए, वर्ल्ड को ही रिनाउंस कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो है विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है। दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक काल अवधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। जिन्होंने उसके बारे में, यदि वो जीवित होता तो स्वाभाविकता सुनते, मीन्स उसकी क्या हो गई है? सिविल मृत्यु हो गई है, सिविल डेथ। 7 साल या उससे अधिक अवधि से उसके पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, रिश्तेदार जो है उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, देखना तो बहुत दूर की बात, सुना भी नहीं जीवित होने के बारे में कुछ, उस व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया जाएगा। क्या? मरने की प्रिजम्पशन कर दी जाएगी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। उसके बेसिस पे भी जो है ये टेन्योर 7 साल का कंप्लीट होने के बाद विवाह विच्छेद का आधार है वो बन सकता है। स्पष्टीकरण, इस उपधारा में अभित्यजन जो डिजर्शन आपने पढ़ा था 1B में, धारा 13 की उपधारा 1 के है वो खंड 1 ख में, अभित्यजन से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना है और उस पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, जिसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर जो है अर्जीदार की उपेक्षा करना भी शामिल है, और इस पद के व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पदों के अर्थ जो है वो तद अनुसार लगाया जाएगा। अभित्यजन का अर्थ जो है, दूसरा जो विवाह का पक्षकार है उसने साहचर्य से अलग कर दिया उसको बिना युक्तियुक्त कारण के और उसकी सहमति और इच्छा के है वो विरुद्ध, तो वो क्या कहलाएगा? वो अभित्यजन कहलाएगा। और इसमें जानबूझकर उसकी उपेक्षा करना जो है यह भी अभित्यजन की श्रेणी में आएगा। उपधारा 1 का जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि ये 1964 के संशोधन से ऐड हुई है, ये ओरिजिनल एक्ट में जो है वो नहीं थी। ये कब है वो ऐड हुई? उपधारा 1 का जो है, जिसको हम विवाह का व्यवहारिक भंग या ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज कहते हैं, ये जो है 1964 के अमेंडमेंट से है वो ऐड हुई है। विवाह का कोई पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात में हुआ हो, विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकता है कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ जो है वो नहीं हुआ है। जिन पक्षकारों के बीच में जो है वो क्या है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई धारा 10 की उपधारा 1 में, और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद वो 1 साल और उससे ज्यादा समय हो गया, उनके बीच में सहवास पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन उनके बीच में जो है वो नहीं हुआ है, तो ये क्या है? ये विवाह विच्छेद का तो जो है वो डिवोर्स का जो है वो ग्राउंड जो है वो बन सकेगा इस डिक्री के बेसिस पे, और ये टाइम साबित कर दिया जाए और 1 साल और उससे ज्यादा समय हो गया उनके बीच में रिजम्पशन ऑफ वो कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो विवाह विच्छेद हो सकता है, विवाह का विघटन हो सकता है इस आधार पर। और ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार है वो पक्षकार थे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापन, दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष से उससे ऊपर की कालावधि हो गई और उन पक्षकारों के बीच क्या है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जो है वो नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में भी ये फर्दर क्या है, विवाह विच्छेद का आधार बन जाएगा। धारा 9 की डिक्री पारित हो गई है, वो पति के पक्ष में पत्नी के विरुद्ध 1 साल का समय और अधिक गुजर गया, वो दाम्पत्य अधिकारों की उनके बीच में जो नहीं हुई है स्थापना, तो उस कंडीशन में 1 साल की अवधि के बाद जो है अर्जीदार
या वो पक्षकार जिसके पक्ष में धारा 9 की डिक्री है वो क्या कर सकता है, वो विवाह विच्छेद के लिए जो है वो जा सकता है वो इस धारा 13 की उपधारा 1 का में। अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन 2009 सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय ने यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह का असुधार्य भंग जो है विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अनुतोष जो है वो दिया जा सकता है। सबसेक्शन 2, पत्नी कुछ आधारों पर जो है विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर अर्जी उपस्थापित कर सकती। धारा 13 की उपधारा 2 में जो आधार दे रखे हैं वो केवल पत्नी के लिए, पति को उपलब्ध नहीं है। ये क्या क्या 4 आधार है? इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ से पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। इस 1955 के एक्ट के लागू होने से पहले हस्बैंड ने 2 विवाह कर लिए, 2 स्त्रियों से विवाह कर दिया। प्रथम विवाह की पत्नी भी जो है विवाह विच्छेद में जा सकती है, द्वितीय विवाह की पत्नी भी विवाह विच्छेद में जा सकती है, दोनों का अधिकार है, प्रथम या द्वितीय। यदि है वो प्रथम विवाह की तब है वो जा सकती है जब उसके रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी वाली तब जा सकती है, उसको ये बात नहीं बताई हो आदि, और पहले से पत्नी उसकी जीवित थी विवाह कर लिया, तो दोनों में से कोई भी जा सकती है विवाह विच्छेद के लिए इस धारा 13 की उपधारा 2 के खंड 1 के अंदर। और 1955 से पहले जो है ये इस तरीके का दूसरा वो विवाह करना ये विवाह विच्छेद का आधार है वो नहीं था, ये डिवोर्स का ग्राउंड है वो नहीं था, ये पहली बार इस एक्ट में ही है वो विवाह विच्छेद का आधार है वो बनाया गया। पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन और पशुगमन का दोषी रहा, रेप का दोषी रहा, या 377 आईपीसी जो है अप्राकृतिक अपराध जिसमें गुदा मैथुन भी और पशुगमन भी कवर होता है, तो उन दोनों में से किसी का दोषी रहा है, कन्विक्शन हुई है वो इनमें से किसी कृत्य के लिए, तो ये विवाह विच्छेद का जो है वो आधार है वो पत्नी के लिए उपलब्ध रहेगा। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में, जो वाद कौन लेके आती, पत्नी लाती है, और किसके विरुद्ध, पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए, उस वाद में कोई डिक्री पारित हुई है, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन जो है भरण पोषण की कार्रवाई पत्नी ने पति के विरुद्ध की है, उस कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति को डिक्री या आदेश है वो इस बात के होते हुए पारित किया गया है कि वो अलग रहती है, सेपरेट रह के भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, चाहे वो सेक्शन 18 में हुआ है चाहे 125 सीआरपीसी में हुआ है। और ऐसी डिक्री और आदेश, भरण पोषण की ऐसी डिक्री और आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। भरण पोषण की ऐसी डिक्री पारित हो गई या आदेश पारित हो गया 125 सीआरपीसी में, या हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत अलग रहते हुए, और उस डिक्री या आदेश की तारीख से 1 साल का समय, 1 साल या उससे अधिक का समय गुजर गया, और वो जो है उनके बीच में सहवास है वो पुनः प्रारंभ है वो नहीं हुआ है, तो यह है वो क्या होगा, पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का आधार है वो बनेगा धारा 13 की उपधारा 2 के इस 3rd पॉइंट के अंतर्गत। उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसकी 15 वर्ष की आयु होने से पूर्व अनुष्ठापित किया गया, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का क्या कर दिया, निराकरण कर दिया। लड़की के केस में उसका विवाह जो है 15 वर्ष की आयु से पहले किया गया, 12 वर्ष 13 वर्ष 10 साल आदि में, 15 से 18 के बीच में जो है उस है वो पत्नी ने अपने विवाह को निराकरण है वो कर दिया, रेपुटेड है वो कर दिया, रेपुडिएट, निराकरण मतलब उसको जो है वो विवाह को निरस्त या कैंसिल की, मैं इस विवाह को नहीं रखना चाहती, इस ऑप्शन को चुना है, तो वो डिवोर्स के लिए जो है वो पिटीशन फाइल कर सकती है इस आधार पर, और विवाह विघटित है वो करवाया है वो जा सकता है। बट ये राइट उसको रेपुटेशन का 15 से 18 के बीच में एक्सरसाइज करना होगा। यह खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही मेरी? क्या हुआ, ऑनलाइन
क्लास क्यों नहीं जा रही? यह खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व किया गया हो या पश्चात अनुस्थापित किया। दोनों प्रकार के विवाह में जो है धारा 13 की उपधारा 2 का ये खंड 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा। 1976 का एक्ट जब कभी भी है वो लागू हुआ, ये उसके लागू होने से पहले का विवाह है 75, 74, 70 आदि का, उसमें भी लागू होगा। और 78, 79, 80 या आज तक की तारीख का है तो उसमें भी है वो प्रोविजन है वो लागू होंगे। रसल बनाम रसल 1897 का जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है जिसमें क्रूरता शब्द को जो है परिभाषित किया था। क्रूरता का मतलब है वो क्या है ये इस जजमेंट में समझाया गया था। और विवाह विच्छेद जो शब्द आप पढ़ रहे हैं धारा 13 में, उसका अर्थ क्या, ये इस जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये अलग है। विवाह विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है वैवाहिक बंधन का जो है विधिक समापन। वैवाहिक जो बंधन है मैट्रिमोनियल बॉन्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसका लीगल सीजेशन जो है विधिक रूप से समापन क्या कहलाता है, विवाह विच्छेद है वो कहलाता है। शैलेंद्र कुमार बनाम चंद्र प्रभा 1959 एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट है। जब पति घर पर नहीं रहता था तब पत्नी जार कर्म के कार्य करती थी। पति के द्वारा जारता के आधार पर अर्जी पेश की गई। कोर्ट ने पति के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। दास्ताने बनाम दास्ताने 1975 सुप्रीम कोर्ट, ये क्रूरता के संदर्भ में लीडिंग जजमेंट है, क्रूरटी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का। पति और पति के पिता के बारे में झूठे आरोप लगाती थी पत्नी। पति के पिता की वकालत की सनद झूठी और जाली है ये भी कहती थी। पति के अफसरों को उसके चरित्र के बारे में झूठी शिकायतें करती थी। पति के घर पर आने पर घर का ताला बंद कर देती थी। बच्चों को पति के सामने पीटती थी और यह भी कहती थी कि आप मानव योनि में क्या हो, दानव या राक्षस हो। जब आपने जो है जन्म एक मानव के रूप में ले लिया, बाकी आप राक्षस से कम नहीं हो। ये सब जो पत्नी का कंडक्ट था पति के प्रति, ये क्रूरटी कंसीडर किया गया, क्रूरता है वो माना गया। और उपरोक्त सभी कार्यों के आधार पर पति के प्रति क्रूरता को कंसीडर करते हुए पति के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी 1998 सुप्रीम कोर्ट, ये शायद इंग्लिश में हमने नहीं पढ़ा था। इलीगल डिमांड ऑफ डोवरी इज क्रूरटी टुवर्ड्स द वाइफ। अवैध रूप से दहेज की मांग करना क्या है, ये पत्नी की प्रति जो है वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा यदि पति या पति के नातेदारों द्वारा इस तरीके की अवैध मांग है वो की जाए। अभित्याग जो वर्ड है डेजर्शन, 3 प्रकार की बातें कवर होती है इसमें। वास्तविक अभित्याग जिसमें विवाह का एक पक्षकार स्वयं घर छोड़ के चला जाता है। आणविक अभित्याग जिसमें विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और जानबूझकर अभित्याग जो है, अभित्याग नहीं है, जानबूझकर उपेक्षा क्या है, जानबूझकर उपेक्षा, विलफुल नेग्लेक्ट। यह भी जो है हमने डेफिनेशन पोर्शन में एक्सप्लेनेशन में डेजर्शन का जो मीनिंग पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि विलफुल नेग्लेक्ट भी जो है जानबूझकर उपेक्षा करना, ये भी अभित्याग में कवर होता है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1996 सुप्रीम कोर्ट, विवाह का ये तो उस पे कन्वर्जन पे धर्म सम परिवर्तन पर लीडिंग है वो जजमेंट है। और जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है इस जजमेंट को इसी क्लास में कि यदि पीनल प्रोविजन से बचने के लिए पहले रिलीजन कन्वर्ट करता है फिर दूसरा विवाह करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मैरिज वॉइड है और उस केस में उसको बाइगमी के ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। और ये मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल झैड 1999 सुप्रीम कोर्ट जो है, ये वोरुलेंट जो डिजीज है, हाँ उस डिजीज के संग HIV पॉजिटिव को संचारी रतिजन्य रोग है वो माना गया था। और ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति को रोगी बनाने का या है वो मरीज बनाने का अधिकार है वो नहीं है। और ये जो लास्ट ग्राउंड, सेकंड लास्ट जो ग्राउंड हमने पढ़ा था, धार्मिक पंथ के अनुसार है अब वो संसार को त्याग देना, पूर्ण और अंतिम रूप से परित्याग करना, जैसे सन्यासी बन जाना, यति है वो हो जाना। और लास्ट जो है सिविल मृत्यु के रूप में, सिविल डेथ जो है वो हमने डिस्कस किया था कि 7 साल या उससे अधिक
अवधि में उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सुना हो। यदि वो जीवित होता तो अवश्य सुनते। वो माता पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, निजी रिश्तेदार हो सकते हैं। अभी आवाज आ रही है ना मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? थोड़ा नेट का इंटरप्शन है, आज नेट का इश्यू है, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास भी भेजेंगे। वो जितना आप लोगों ने सुन लिया जो है या अभी सुनेंगे, उसके अलावा भी अभित्याग जो है वो 3 प्रकार का होता है। वास्तविक अभित्याग, विवाह का एक पक्षकार वैवाहिक घर छोड़कर स्वेच्छा से स्थायी रूप से चला जाता है, जैसा विपिन चंद्र बनाम प्रभावती में हुआ था। वास्तविक अभित्याग के 5 आवश्यक तत्व है। पृथक रहने का तथ्य होना चाहिए, अभित्याग का आशय होना चाहिए, बिना युक्त कारण के होना चाहिए, सम्मति के बिना होना चाहिए, और 2 साल का पीरियड, लगातार 2 वर्ष तक साहचर्य से वंचित किया हो। ये सभी 5 बातें जो है एक्चुअल डेजर्शन या वास्तविक अभित्याग के लिए आवश्यक है। विपिन चंद्र बनाम प्रभावती ये 1957 सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट है, और लक्ष्मण बनाम मीना 1964 का भी एक और जजमेंट भी पढ़ने को मिलेगा। ये मोस्ट लीडिंग जजमेंट है। आणविक अभित्याग क्या होता है? विवाह का एक पक्षकार अपने कार्य आचरण द्वारा दूसरे पक्षकार को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर या विवश करता है। विवश करने वाला पक्षकार क्या है? आणविक अभित्याग का दोषी है। पति इस तरीके का जो है सिचुएशन या कंडक्ट है पति का कि पत्नी उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, तो आणविक अभित्याग का दोषी पति होगा। जो घर छोड़ के गया है या गई है वो दोषी नहीं होगा आणविक अभित्याग का। आणविक अभित्याग का दोषी वो विवाह का पक्षकार होगा जिसने कंपेल किया उसको है वो वैवाहिक घर छोड़ने के लिए। अभित्यजन और अभित्याग वो अभित्याग ही तो था। कहीं आपको अभित्यक्त लिखा हुआ मिल सकता, कहीं अभित्यजन लिखा हुआ मिल सकता, कहीं अभित्याग लिखा मिल सकता, एक ही वर्ड है वो। वैसे अभित्यजन का एक और वेवर के सेंस में भी यूज लिया जाता है, वेव में भी। हाँ, अभित्यजन, ठीक है। ज्योतिष चंद्र मीरा 1970 कलकत्ता हाईकोर्ट का कॉन्स्ट्रक्टिव जो डेजर्शन है, आणविक अभित्यजन या अभित्याग है, इस पर लीडिंग जजमेंट है। जानबूझकर उपेक्षा करना, एक ही मकान या परिसर में रहते हुए दाम्पत्य दायित्व का युक्त कारण के बिना निर्वहन नहीं करना, ये विलफुल नेग्लेक्ट या जानबूझकर उपेक्षा करना में कवर होता है। विवाह का असमादेय भंग या असुधारी विखंडन, ये हमने डिस्कस कर लिया 1964 में, जो 13(1)(a) में है वो ऐड हुआ है, और धारा 13 की उपधारा 1 का जो है वो इस संशोधन से जोड़ी गई। ये संशोधन के ईयर वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं। और ये ग्राउंड 2 जो पढ़ रखे हैं हमने, महेंद्र बनाम ऊषा का एक 1977 का जजमेंट भी है इसके संदर्भ में। पत्नी के विवाह विच्छेद के आधार ये भी पढ़ लिए हमने। यस, देन 13(a) alternate relief in divorce proceeding. Petition for divorce has been filed and court has power to grant the relief of judicial suppression. Court has power to grant the relief of judicial suppression, decree for the judicial suppression as per the section 13(a). In any proceeding under this act on a petition for dissolution of the marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the ground mentioned in clauses 2nd means conversion in another religion, 6th renounce the world, and 7th civil death. Except these 3 grounds which are specified under subsection 1st of section 13, court may, if it consider it just so to do, having regard to the circumstances of case, pass instead of decree for judicial suppression. Court may pass the instead of decree for divorce, the decree for judicial suppression. It's in discretion as per the section 13(a) of the Hindu Marriage Act 1955. But if petition has been filed on the ground which are mentioned under the 2nd, 6th and 7th of the subsection 1st of section 13, court has no discretion to pass the decree for judicial suppression. Court may pass only the decree for divorce. धारा 13 का जो है विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के अर्जी पर उस दशा को
छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड सेकंड, 6 और 7, सेकंड मीन्स अन्य धर्म में संपरिवर्तन, 6 का मतलब संसार का पूर्ण और अंतिम रूप से त्याग, और 7 का मतलब सिविल मृत्यु, इन 3 आधारों से भिन्न इन केसेस में तो विवाह विच्छेद की डिक्री ही कोर्ट पारित कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री नहीं दे सकता। इन 3 से भिन्न अन्य आधार है, लाइक एडल्ट्री है, क्रूल्टी है, डेजर्शन है, ये डिजीज है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो इनमें से किसी भी अबो ग्राउंड पर कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रेशन है कि वो विवाह विच्छेद की डिक्री की जगह कौन सी डिक्री दे सकता है, न्यायिक पृथक्करण की, जुडिशियल सेपरेशन की। यस, उनमें वर्णित आधार है। यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझता है तो विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जो है वो पारित कर सकता है। ये 3 आधार ऐसे हैं जहां ऐसे विवेक का प्रयोग जो है वो कोर्ट नहीं कर सकता। धर्म संपरिवर्तन के आधार पर 13(1) संसार का पूर्ण और अंतिम रूप से परित्याग करने की दशा में 13(1) और दूसरे पक्षकार की सिविल मृत्यु की दशा में 13(1)(7), इनमें कोर्ट का विवेक जो है जो 13 क में जो दे रखा है वो उपलब्ध नहीं है। देन 13B, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। Divorce by the mutual consent of the party to the marriage. Subject to the provision of this act, a petition for dissolution of a marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. There is a mutual consent of the party to the marriage, husband and wife. They are living separately for a period of 1 year or more. They have not been able to live together as husband and wife. Then if the petition has been filed on the mutual consent of the parties, court may pass the decree on the basis of the such mutual consent to dissolve that marriage by way of divorce. Subsection 2, on the motion of both the parties made not earlier than the 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1, not later than the 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn. If the petition is not withdrawn in the meantime, court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making the such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. If the such petition which has been presented before the court with mutual consent, the consent of either party has not been withdrawn after the presentation of the 6 month or before the 18 months, then after expiration of the 18 months, court shall pass the decree of the divorce on the mutual consent of the parties as per the subsection 2 of the section 13B of the Hindu Marriage Act, after making necessary inquiry and giving opportunity of hearing to the party to the such proceeding. Surestha Devi versus Om Prakash, 1991 Supreme Court. Any party to the suit or petition on take his consent back at any time before the passing the decree under section 13B of the Hindu Marriage Act. Means party has right to withdraw his consent before the passing the decree under section 13B of the Hindu Marriage Act. And this provision, section 13B, inserted by the 1976 amendment. The divorce on mutual consent, this provision has been inserted in Hindu Marriage Act by 1976 amendment. Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura, 2002 Supreme Court. In this case, the wife applied for withdrawal of a consent after 18 months. During the pendency of the petition, the husband remarried and had a child. The marriage had come to an end both emotionally and practically, and a conditional decree was passed. The husband was directed to pay the 10 lakh rupees to the wife as maintenance, etc.
Court shall not pass the decree under section 13b if one party withdraw the application filed under section 13b, one party withdraw the her or his consent in respect of the such divorce. Santosh versus Virender 1980 Supreme Court, and this is the recent case. Amardeep Singh versus Harveen Kaur 2017 Supreme Court judgment. Court, in this case law, the court held that court can pass the decree under section 13b before the 6 months of the date of presentation. Court has discretion to pass the decree of divorce on mutual consent even before the expiration of the 6 months from the date of presentation of petition, exceptionally after records the reason for the decide the such application or the pass the such decree. धारा 13 ख देखेंगे आप, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन से संशोधन से 1976 का संशोधन पूछा जाता है। ये यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा गया है और आरजेएस में काफ़ी टाइम से ये था नहीं, अब वापस जुड़ा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। 1976 के अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ ये प्रावधान, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह जो है विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व हुआ है या पश्चात अनुस्थापित किया गया है, जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी पेश कर सकते हैं पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए। इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से क्या है अलग अलग रह रहे हैं। दूसरी बात, वे साथ साथ नहीं रह सकते, 1 साल या अधिक पीरियड से अलग अलग रह रहे हैं और साथ साथ रहने की स्थिति में नहीं है वे, और वो इस बात के लिए जो है परस्पर सहमत भी हो गए हैं कि विवाह का विघटन जो है वो विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा कर दिया जाए। ये तीनों बातें यदि दोनों पक्षकार साबित कर देते हैं या उस अर्जी में दी गए कथनों से साबित हो जाती है कि 1 साल या अधिक पीरियड से अलग रह रहे हैं, साथ में रहना इनका हस्बैंड वाइफ के रूप में पॉसिबल नहीं है, और ये म्यूचुअली एग्री हो गए हैं अलग है वो होने के लिए, अपने विवाह के बंधन को है वो तोड़ने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा पारस्परिक सहमति से जो है विवाह को विघटित कर सकता है। सबसेक्शन 2, कोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 महीने के बाद और उस तारीख से 18 महीने से पूर्व दोनों पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई हो तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो ठीक समझे अपना यह समाधान कर ले कि विवाह अनुस्थापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन या कथन, एवरमेंट्स के लिए प्रकथन या प्रकथन सही है, यह घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह की डिक्री की तारीख से विवाह है वो क्या है, विघटित है वो। कोर्ट आवश्यक जांच करेगा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा और पिटीशन पेश होगी, पहली तारीख 6 महीने के बाद की दी जाएगी। जब उस सेकंड तारीख पे या उसके बाद भी 18 महीने पेश करने की तारीख से बीच में कभी भी कोर्ट वो दोनों में से कोई भी पक्षकार कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं या कोर्ट से प्रस्ताव करते हैं कि अब हमारा विवाह विघटित कर दिया जाए कोर्ट की डिक्री द्वारा, तो कोर्ट उनको सुनवाई का अवसर देकर उनके द्वारा जो अर्जी में जो कथन किए गए उनकी सत्यता की जांच करने के बाद, और वो 3 बातें जो आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ी है, 1 साल या अधिक समय से अलग रह रहे हैं, साथ में रहना पॉसिबल नहीं है और पारस्परिक सहमति भी है विवाह को विघटित करने की, तो कोर्ट पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विवाह को विघटित कर देगा। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए पति और पत्नी का 1 साल या अधिक समय से पृथक रहना जरूरी है। संयुक्त याचिका विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने के लिए पेश की जाती है। हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली पेश करते हैं, म्यूचुअल पिटिशनर रहते हैं उसमें। अर्जी पेश करने से 6 महीने के बाद और 18 महीने से पूर्व दोनों पश्चात प्रस्ताव की सूचना द्वारा याचिका को यदि वापस नहीं लेते हैं तो कोर्ट जो है वो डिक्री पारित, यदि 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले वो अर्जी को वापस ले ले या एक पार्टी अपनी कंसेंट वापस ले ले कि नहीं मैं जो है वो सहमत नहीं हूँ इसमें पारस्परिक सहमति, मैं मेरी सहमति को वापस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उस कंडीशन में कोर्ट है वो डिक्री पारित नहीं करेगा। न्यायालय उचित जांच करने के बाद याचिका के कथनों की सत्यता को संतुष्ट होने पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है।
परंतु सहमति ये पारस्परिक सहमति में कपट, बल या असम्यक असर से प्राप्त की गई हो तो क्या कोर्ट 13B में डिग्री पारित करेगा? नहीं। कंसेंट यदि फ्रॉड से, फोर्स से और अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, बल और असम्यक असर से प्राप्त की गई है तो 23 में दे रखा है कि ऐसी कंडीशन में रिलीफ नहीं दिया जाएगा, वो कोर्ट जो है वो डिग्री पारित नहीं करेगा धारा 13 के अंदर। रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा ये माननीय 2002 सुप्रीम कोर्ट। क्यूरेटिव पिटीशन सुना होगा आपने। क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसका ओरिजिन इसी जजमेंट से हुआ है। लीडिंग जजमेंट है क्यूरेटिव पिटीशन पे भी और 13B पे भी। थोड़े बहुत इस मामले के तथ्य इस तरीके से थे। इस मामले में पत्नी ने 18 महीने बाद सहमति वापस लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की। याचिका के लंबित रहने के दौरान पति ने दूसरा घर बसा लिया, विवाह कर लिया और एक बच्चा भी हो गया उस दूसरे विवाह से। कोर्ट ने कहा कि विवाह जो है, पहले वाला विवाह भावनात्मक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से समाप्त हो चुका है, टूट चुका है। तो ऐसी कंडीशन में इस विवाह को कंटिन्यू रखना जो है वो संभव भी नहीं है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी है वो नहीं है। कोर्ट ने कंडीशनल डिक्री पारित की आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए, अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री पारित की। कंडीशनल डिक्री, कंडीशनल का मतलब विवाह को तो विकटित किया ही, उसके साथ साथ मेंटेनेंस का ऑर्डर किया। पत्नी को पति द्वारा 10 लाख रुपए संदाय करने का जो है वो निर्देश है वो दिया गया। संतोष बनाम वीरेंद्र 1980 सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय धारा 13 की याचिका में, धारा 13 की याचिका में 6 महीने से पूर्व भी डिक्री पारित कर सकता है। जो 6 महीने का बैरियर लगा रखा है ये एक्सेप्शनली जो 6 महीने से पहले भी जो है पारस्परिक सहमति से जो है विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिसेंट जजमेंट में भी रिपीट किया। अमरदीप सिंह बनाम हरविन कौर 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये न्यायालय प्रस्तुति तिथि से 6 महीने से पहले भी 13 के अंतर्गत डिक्री पारित कर सकता है। सेक्शन 14 नो पिटिशन फॉर डिवोर्स। 13 जो सेक्शन था 13B के साथ हम देखें तो मोटा मोटी आप इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो फॉल्ट थ्योरी, दूसरा जो पार्ट है वो ब्रेकडाउन, और थर्ड जो है वो कंसेंट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी में जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आगे, और 13 फर्स्ट भी कवर होगा इसमें और 13 सेकंड भी कवर होंगे। ये दोनों फॉल्ट थ्योरी में कवर होंगे। ब्रेकडाउन थ्योरी में जो है 13(1)(a) कवर जो है वो होगा, जो 1964 के अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है। और ये जो कंसेंट थ्योरी है ये 13B है और ये 1976 के अमेंडमेंट से जो है वो इंसर्ट हुआ है। हैं? नहीं आ रहा? एक मिनट रुकिए। अच्छा, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये लास्ट में मैंने कंसेंट थ्योरी लिखा है यहां, और ये 13B सेक्शन लिखा है, इसके नीचे 1976 का अमेंडमेंट नोट किया। हिंदी में भी आप इसी तरीके से, ये फॉल्ट थ्योरी की जगह क्या है, दोष सिद्धांत, क्या कहते हैं इसको, दोष सिद्धांत। ये जो ब्रेकडाउन थ्योरी, ये विवाह का व्यवहारिक भंग, क्या कहते हैं इसको, व्यवहारिक भंग। और ये जो है वो सहमति,
ये ओरिजिनल एक्ट में था फॉल्ट थ्योरी, ये जो है वो 1964 में ऐड हुई ब्रेकडाउन थ्योरी, और ये जो है वो 1976 में ऐड हुई। तो ये डिवोर्स की तीन प्रकार की थ्योरी है, फॉल्ट थ्योरी, ब्रेकडाउन थ्योरी और कंसेंट थ्योरी।